Hello. Hi guys, can you hear me? Please respond so that I can start my class. Can you please confirm my voice is clear to you or not? Okay, Sana has responded. It is clear. So I will continue the reproduction in organism chapter today, and I'll just revise fastly that what we have covered in the last class, and then I'll continue this chapter basically. I'm waiting for more students to join, but I think three of you have joined in today's class, so let me check. So guys, I'm sharing a screen with you again. So actually this chapter is a brief of your entire reproduction chapter. Acha, just confirm me my screen is visible now because we have some problem regarding screen visibility. Okay. Sorry guys, actually I forgot to switch on my mic. I just remind this. Okay. So I was just revising the stuff. So in gametogenesis, basically we have discussed about the gamete formation. So in haploid life cycle, the gamete formation is mainly through mitosis. But if an organism is having diploid life cycle, the gametes will form by the meiosis division. एंड यहाँ पर मैंने ये भी बताया था दैट डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में दो स्टेजेस होती है, स्पेरोफिटिक एंड गेमेटोफिटिक. तो स्पोर फॉर्मेशन मियोसिस से होता है एंड देन वो स्पोर से आपके बायोमाइटोसिस गैमेट बनेंगे.
तो डायरेक्टली आपके गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, पहले स्पोर स्टेज आती है एंड देन फिर गैमेट फॉर्मेशन होता है. Then on the basis of morphological structure of the gametes, we have classified them into two categories. So first is homogamete and isogametes. Basically, homo means similar, iso means similar. Biological terms है, basic prefixes हैं जो हम किसी भी टर्म के आगे यूज करते हैं. तो अगर सेम स्ट्रक्चर है तो दोस टाइप ऑफ गैमेट्स आर नोन एज होमोगैमेट्स, एंड अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर है तो दे आर नोन एज हेट्रोगैमेट्स. ओके, देन हेट्रोगैमेट्स में मैंने आपको बताया था एनाइसोगैमेट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमेट्स होते हैं बेसिकली. तो फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमेट्स में फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है, मॉर्फोलॉजिकली दे आर सेम. देन आई हैव टू डिस्कस अबाउट, ओके ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, मोनोएशियस, डाईएशियस. सो मोनोएशियस बेसिकली बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स एंड डाईएशियस आर एक्चुअली यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. तो अगर हम डाईएशियस की बात करते हैं और मेनली प्लांट्स को अगर हम स्टडी करते हैं, सो अ प्लांट इज हैविंग ओनली मेल फ्लावर्स इज कंसीडर्ड एज स्टेमिनेट, and the plant having both the only the female flower is known as pistillate. Okay, and अगर दोनों flowers एक ही plant पे हैं तो we will call it as a monoecious plant. Fine. Then dioecious means unisexual organisms. Now मैंने example, ये diagram आपकी NCERT में है, you can check. There are certain examples showing unisexual and bisexual organisms. Then I have to discuss about the cell division during gamete formation. Okay, तो briefly मैंने आपको ये statement last class में भी दिया था that जो haploid body जिसका रहता है वहां पर गैमीट फॉर्मेशन इज बेसिकली बाय माइटोसिस. तो ऐसा ऑलवेज नहीं होता है. देखो एक चीज डिफाइंड है, जो यूनिवर्सली डिफाइंड थिंग है वो ये है कि गैमीट्स आर हैप्लॉइड. नाउ व्हाटएवर प्रोसेसेस ऑर्गेनिजम्स आर डूइंग, these all processes are actually to form haploid gamete. Okay, so gametes are haploid while spore can be haploid or diploid. कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है मैम दैट गैमीट और स्पोर में डिफरेंस क्या है. तो इसका यूनिवर्सल डिफरेंस है कि गैमीट्स में फ्यूजन होता है और स्पोर्स में फ्यूजन नहीं होता है. ठीक है, ये चीज आपने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ी होगी दैट वॉट एवर गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे विल फ्यूज. इफ एनी गैमेट which is germinating or which is developing into organisms without fertilization or without fusion, उसको भी हम finally फिर spore में ही consider करेंगे. Okay, ये चीज में मैं आगे discuss करूंगी when we come to fertilization part. But I am saying the major difference between gamete and spore is based on their fusion capability, because gametes will always fuse to form a zygote, while spore are the structures, they are not fusing with each other individually, they will develop a new organism. Okay, तो gametes हमेशा haploid होते हैं और spore can be haploid और spore can be diploid. हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको हैप्लॉइड स्पोर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था दैट वहां पर जो स्पोरोफिटिक में मियोसिस होता है और वहां से जो स्पोर जनरेट होता है वो आपका हैप्लॉइड स्पोर है. और जहां पर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, देखो वहां पर क्या होगा, जाइगोट जो फॉर्म होगा वो डिप्लॉइड है. अब जाइगोटिक मियोसिस के बाद जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं वो आपके वो तो हैप्लॉइड ही रहेंगे. डिप्लॉइड में बेसिकली जाइगोट, जब जैसे आपने जाइगोस्पोर में पढ़ा होगा, इट इज अ टाइप ऑफ जाइगोमाइटिस, इट्स अ टाइप ऑफ फंगाई. तो वहां पर जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है एंड वो जो जाइगोस्पोर है वो डिप्लॉइड होता है. तो स्पोर कैन बी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, बट गैमीट्स आर यूनिवर्सली हैप्लॉइड इन नेचर. ओके, तो यहाँ पर मैंने ये स्टेटमेंट भी बताया, यू कैन सी दैट गैमीट्स आर हैप्लॉइड through the parent plant body from which they arise may be haploid or diploid. ये statement last class में ही बताया था. So you can see that here parental body of organism like Monera, fungi, very important, Monera, fungi, algae and bryophytes is haploid. मतलब इनका life cycle कैसा होता है, haploid. They produce gamete by mitotic division. Very important statement as it is NCERT का statement है ये. आपकी बुक में आप जब रीडिंग करोगे तो you will find this statement that यहाँ पर जो organisms haploid life cycle show करते हैं, they produce gametes by mitotic division.
parental body of organisms like pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms, and most of the animals, including human beings, is diploid. And here the gametes produced are by meiotic division, है ना? तो ये reductional division है और यहाँ पर equational division होता है. Fine. In diploid organisms, specialized cells called meiocyte, which is gamete mother cell, undergo meiosis. ये हम जब मैं आपको reproduction in plants and animal बताऊंगी तो वहां पर हम gamete mother cell को, जैसे एक student ने last class में बोला था मैम pollen mother cell, जो हम megasporangium, microsporangium की बात करते हैं, तो those are actually gamete mother cells which under to produce, okay, actually cell division during gamete formation is having haploid bodies by mitotic one because chromosome should be, and the parents having diploid body, the gamete will be formed by meiotic division because we have to reduce the number of chromosome from 2n to n. Okay, so hope this slide is clear to you. You can take a screenshot of this slide and then I'll continue. Fine. Okay. So this is about the cell division in gamete, because जो भी flow में है ना, it's completely the flow of NCERT. तो very important. और यहाँ से जो MCQ है, even though 1 or 2 marker question है, directly बनेंगे, तो you can write as it is statement because everything is given there. Okay, 1 second. Let me clear this. Fine. Then gamete transfer. देखो, pre-fertilization events में दो चीजें होती है. So first is gametogenesis and second is gamete transfer. Fine. So gametogenesis, types of gamete, and how gamete form, basically by which type of cell division, that we have discussed. Now second important event is gamete transfer. So you can say that देखो, gamete formation is within the organism or by the organism. तो वहां पर कोई chance process follow नहीं होता है. But gamete transfer is like a chance process. We have to increase the probability of its transfer and then fusion as well. But अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? Transfer. तो यहाँ पर ट्रांसफर कैसे होता है? It depends on the surrounding and type of organism. And gamete, type of gamete transfer actually आपको evolution भी represent करेगा. वो मैं बाद में बताऊंगी कैसे आप इवोल्यूशन को यहाँ पर लिंक कर सकते हो और कैसे गैमीट ट्रांसफर इवॉल्व हुआ है. ठीक है. If we are talking about the lower organisms like algae and fungi, lower organism, or you can say the organisms who live in water, वहां पर गैमीट ट्रांसफर का एक यूनिवर्सल मीडियम है, दैट इज वाटर, बिकॉज वाटर इज फ्लोइंग. सो विद दैट फ्लो इट कैन ऑल्सो कैरी गैमीट्स विद इट, है ना. बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकती है? देखो, बिकॉज इन फर्टिलाइजेशन वी नीड बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स, मेल एंड फीमेल. तो अगर if what is happening, if both the gametes are not producing on the same time, so it doesn't matter that water is carrying the male gamete only, not the female gamete, so there is no sense because there will be no fertilization. Okay, तो जो gamete transfer होता है ये भी बहुत डिपेंड करता है कि how the gametes are released from the parent. So the first condition that, अगर मैं सिर्फ अभी मैं सिर्फ वाटर की बात कर रही हूँ, ठीक है, both the gametes, male or female, should be released on the same time or within approximate same time so that they can increase the chances of fertilization. Okay, ये मैं fertilization में आपको और explain करूंगी what I am trying to say you basically, because ये जो aquatic वाला है and the terrestrial वाला है, it is very important. अगर इसी जगह मैं terrestrial organism की बात करती हूँ, जैसे मैंने लिया plant, है ना, तो plant में क्या रहता है? अगर if we are strictly talking about the angiosperm, so in angiosperm what we are seeing that जो pollen grains होते हैं, pollen grains are actually transferred. Suppose this is the male plant, okay, and this is the female plant. ठीक है. So pollen from the male plant is transferred to the female plant. So what this is indicating that यहाँ पर जो male gametes हैं हम उसको मूव करेंगे और वो कहां पर जाएगा? फीमेल पेरेंट की तरफ. ठीक है. तो यू कैन से दैट हियर मेल गैमेट्स आर
motile in nature. They are showing some type of motility. Basically, they cannot move by their own. They can swim, but for swimming, they need a medium. So if the movement of male gamete is in water, then the swimming medium will be water. And if the male gametes are swimming in the air, then the medium will be air. Now other type of transfers are also there. Basically by animal hota hai, by human hota hai, by insect hota hai, ठीक है. So basically the transfer of pollen grain is by the medium, and we have to transfer the male gamete onto the female body. Okay. तो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स क्या थे. तो एक तो था जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, इवन दो दिस इज फॉर एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल, प्लांट्स प्लस एनिमल्स, that here the main medium for gamete transfer will be water, but the only condition required here that both the gametes should be produced at the same time. So plants में तो नहीं, but जो भी aquatic animals होते हैं, they are showing some kind of sexual behavior. Doesn't matter, they are releasing the gametes into water. There is no internal fertilization, but a type of sexual activity is required so that it can indicate to other organism that now gametes actually are ready to be produced. So the other organism or the female partner will also release the gamete at the same time, just to increase the chance of fertilization. Okay, so it is not necessary that there is proper copulation, there is proper intimidation, but the sexual activity or the behavior like a sexual activity is necessary just to indicate the partner that release of gamete should be at the same time, but the medium will be water. Clear? Now second important चीज यहाँ पर क्या होगी, that water जो है वहां पर external fertilization है, तो वहां पर chances of survival for the gametes will be less. अगर internal fertilization है, if we are releasing the gametes inside the body basically, तो वहां पर chances of fertilization will be more. फाइन. तो यहाँ पर गैमीट ट्रांसफर में एक मीडियम है वाटर विच इज मेनली फॉर लोअर ऑर्गेनिज्म, एंड एक मीडियम है जो टेरेस्ट्रियल. देखो जो वाटर है वो सिर्फ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या पता चलती है, इवोल्यूशन. दैट जो एक्वेटिक इवोल्यूशन है इट इज प्रिमिटिव टाइप एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल इवोल्यूशन, बिकॉज जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है. और यहाँ पर एक और चीज आप देख सकते हो, जो आपके एम्फीबियंस थे है ना, जैसे ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट. आपने किंगडम उसमें कॉर्डेटा में भी देखा होगा, एम्फीबियन एक क्लास होती है. तो एम्फीबियंस आर द कैटेगरी between aquatic and terrestrial life. Like this is the link between aquatic and terrestrial life. तो amphibians ऐसे organisms होते हैं जो अपना adult life span तो terrestrial होता है, but उनका reproductive phase still aquatic होता है. So for example frog जो रहता है उसका adult life span terrestrial है, but for reproduction it has to go in water because the fertilization is external and they need medium water to transfer their gametes. Same in the bryophytes of the plants because they are amphibians. So their development is terrestrial, but for reproduction they need water. Clear? So that is also an indication that जो aquatic life है उसका evolution पहले हुआ था and terrestrial life उसके बाद में evolve हुई है. Clear? So in majority of organisms, male gamete is motile, whereas female gamete is stationary. But यहाँ पर कुछ exceptions हैं. In few fungi and algae, both the gametes are motile in nature. Okay? Means both the gametes, जिसमें हम planogametes की category करते हैं ना, both the gametes are plano in nature. But generally, in mostly organisms, male gametes are motile, while female gamete is stationary. ठीक है? Now second, that a medium is required through which the male gamete move. That medium can be a water for the aquatic organisms, and for the terrestrial one it can be air, it can be insect, it can be human, it can be animal. In algae, bryophytes or pteridophytes, water is the medium for gamete transfer. Even though for angiosperms who are aquatic in nature, water is the medium. Okay. To compensate the loss of male gametes during transport, the number of male gametes produced is several thousands or lakhs, but the number of female gametes produced
one second. To compensate loss of male gamete during transfer, number of male gametes produced is several thousand times the number of female gametes. Okay, तो अगर मैं सिंपल एग्जांपल ह्यूमन का लेती हूँ, तो ह्यूमन में एग का नंबर कितना होता है? 1. Sorry, it's not written properly. If you will count the number of sperms in the semen, then it will be in crores. You can compare the number of male gamete and the female gamete. That why this number is in crores basically, or lakhs or thousands in other organism basically, just to prevent the loss or just to compensate the loss during its transfer. अब ऐसा तो नहीं है जितने gametes transfer हुए हैं वो सारे के सारे fertilize होंगे basically, ठीक है? There will be some gametes क्योंकि उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेगा. दीज आर द सेल्स नॉट वायबल, नॉट एबल टू सर्वाइव इन द कंडीशंस. ओके, सो ओनली फ्यू ऑफ द गैमेट्स आर एबल टू फर्टिलाइज दैट वन. ठीक है, बट अगर आप एक्वेटिक की बात करोगे तो एक्वेटिक में फीमेल गैमेट का नंबर हम 1 नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पर दोनों ही गैमेट्स वाटर में रिलीज होते हैं. तो डेफिनेटली वी हैव टू मेंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ गैमेट्स बाय बोथ द ऑर्गेनिज्म. बट अगर आप टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स आर वेरी लेस एज कंपेयर टू मेल गैमेट्स. ओके, सो दिस इज एन इवेंट. अब गैमेट ट्रांसफर मैंने बता दिया तो वाटर के थ्रू रहेगा. अच्छा, एक और चीज बता देती हूँ, यहाँ पर जो इस तरह का मूवमेंट जिसमें वाटर के थ्रू दोनों गैमेट्स मूव करते हुए पास में आकर मिलते हैं, उस टाइप के मूवमेंट को और ट्रांसफर को हम बोलते हैं ज़ूइडोगैमी. व्हेन बोथ द गैमेट्स आर मूविंग एंड दे आर कमिंग टुगेदर फॉर द सिनगैमी. But the type of transfer when only one gamete is moving to the other one, so one is motile and other is non-motile in nature, तो उस टाइप के मूवमेंट को हम बोलेंगे साइफोनोगैमी. क्लियर? तो जनरली एनिमल्स में जो रहता है, ह्यूमंस में जो रहता है, इंटरनल प्लांट्स में जो पॉलिनेशन होता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ साइफोनोगैमी. बट जो भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है थ्रू वाटर एज अ मीडियम, दे all are known as zooidogamy. Okay, you can note down these two terms because these are very important. So this is about the gamete transfer. Then I think I have shown some pollen grain wala side as well. Okay, so pollination is one of the gamete transfer process which is happening in the plants who are terrestrial in nature. Aquatic plants में भी pollination होता है, but medium is required basically, that is water. वाटर किसमें ज्यादा रिक्वायर्ड है? जो सबमर्ज प्लांट होते हैं या जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं. कुछ ऐसे प्लांट्स आपने ऐसे देखे होंगे जिसके रूट्स तो वाटर में है बट उनका पूरा क्राउन पार्ट एरियल है, तो वहां पर वाटर इज नॉट द मीडियम. ओके, वहां पर ओनली एनिमल, ह्यूमन, इंसेक्ट्स आर द मीडियम. सो व्हाट इज पॉलिनेशन? इसका डिटेल स्टडी हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में करेंगे, बट हियर जस्ट यू नीड टू लर्न दैट पॉलिनेशन इज नथिंग, इट इज द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट to the female gamete by some agent. अब agent का requirement तभी रहता है when the flower is unisexual, है ना? Doesn't mean, ऐसा नहीं है कि bisexual flowers में हमेशा self pollination रहेगा, मतलब कोई medium नहीं required है या फिर chances of pollination ज्यादा है. कभी कभी क्या होता है कि bisexual flower में जो male और female reproductive structure एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट सैक्स में कवर कर लेते हैं, तो दे आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट. सो दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज आल्सो नॉट एबल टू डू सेल्फ पॉलिनेशन. तो वहां पर भी आपको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ले जाना पड़ेगा. बट कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पास पास में होते हैं, एंड द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट इज वेरी इजियर. तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पर पी प्लांट, एंड डेफिनेटली विद इन द फ्लावर हो रहा है तो फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल. दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर. So in bisexual flowers, basically in the pea plant, self-fertilization is happening. So basically pollen grains to the stigma is relatively easy as anther and stigma are located close to each other. And pollen grains soon after they shed comes in the contact with stigma. So within the same flower transfer is also known as self-fertilization that we will study in the reproduction in plants basically. But this is an example. But in unisexual flower, cross-pollination, matlab
An agent is required to transfer the pollen grain from one flower to another flower, from one plant to other plant. Okay. So pollination is actually the transfer of pollen grains from the anther to the stigma. Self pollination and cross pollination दो कैटेगरी होती है. Self pollination is basically within the flower or within the plant. अगर pollination और transfer of gamete within the flower है और within the same plant है, जैसे मैंने monoecious बताया था ना, वहां पर पपाया एक important वो था. Sorry, पपाया तो unisexual होता है, not it is no, sorry, it is unisexual. कुकुर बीट्स में हमने देखा था इट्स एन मोनोइशियस प्लांट, है ना. तो वहां पर मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, वो एक ही प्लांट पे होते हैं, बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, प्लांट मोनोइशियस है. इसको ध्यान से समझना. एक प्लांट है, उस पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, but some flowers are male in nature, staminate in nature, and some flowers are pistillate in nature. Okay, so definitely within the same plant we have to transfer the pollen grain from staminate to pistillate one. Fine. So that is also comes under self pollination. Cross pollination is the pollination in which from one plant to other plant. So the gametes are transferred from one plant of the same species to the other plant. Okay, then what will happen? The pollen grains are actually landed over the stigma of the female plant, and the pollen tubes carries the male gamete, reaches the ovule and discharge the male gamete. As I told you that in the pollen is not the male gamete. Pollen is actually acting as a carrier which is having male gametes. तो जैसे ही आपका pollen grain, जैसे suppose ये आपका stigma है, clear, ये आपका style है, this is your stigma, this is your style, and this is your ovary. Okay, so जैसे ही pollen यहाँ पर land किया, after its landing, the pollen will start to form a pollen tube, and through this pollen tube it is carrying the male gamete up to the female gamete. And where female gamete is located? Basically in the embryo sac. ये आपको detailed study हम reproduction in plants में करेंगे. So this formation of pollen tube and carrying away the male gametes up to the female gametes, this process is known as pollen germination. Okay, so transfer of gamete में actually ये भी रहता है. तो transfer, gamete transfer में actually pollination is there. After pollination, pollen germination will take place. Okay, then in the next part, yeah, there are certain sequences जिसको मैंने ऐसे align किया है. तो first is pollination, second is pollen tube formation, then fusion of male gamete and female gamete. Basically it's a part of fertilization, it's not a part of pre-fertilization event. Then fertilization, finally syngamy will occur. Okay, now we are done with the pre-fertilization event of your sexual reproducing organism का जो reproductive phase है. अगर आपको इसमें कोई भी doubt है तो आप मुझसे chat में पूछ लो. And now the next important event is fertilization. Important क्यों बोला है? Because it is a very critical step. Fusion of two gametes, दोनों के nuclear genetic material को fuse करना, chances of fusion को increase करना. That's why fertilization, any deviation or any mistake in fertilization can hamper the entire life of organism. जैसे आपने Down syndrome सुना होगा, Turner syndrome सुना होगा, plants में जो ploidy change होता है. So those all things are actually not fertilization is the only thing which is responsible for that. Definitely cell division भी होता है, but fertilization can be one of the reason for all the chromosomal abnormality in the future organism. So this is the most critical event of your sexual reproduction. Okay, fertilization को आप syngamy भी बोल सकते हो. Like मतलब these are alternative words, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें कोई difference है. तो जनरली जो फ्यूजन होता है एक्चुअली एग और स्पर्म का, एग और एंथ्रोजॉइड का, दैट एक्चुअल फ्यूजन इज नोन एज सिंगैमी. सिंगैमी मैंने मतलब सिंगैमी इज द जनरल टर्म, बट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गैमेट्स मैंने आपको ये भी बताया था. अगर आइसोगैमेट्स है तो हम बोलेंगे आइसोगैमी, एनाइसोगैमेट है तो हम बोलेंगे एनाइसोगैमी, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमेट है तो हम बोलेंगे फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी, है ना. तो फ्यूजन इन्होंने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ गैमेट्स व्हिच आर एक्चुअली फ्यूजिंग. बट द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स जनरली उनके लिए जो जनरल टर्म है दैट इज सिंगैमी, बट समटाइम्स वी आर यूजिंग फर्टिलाइजेशन फॉर इंस्टेड ऑफ द सिंगैमी.
The only difference between fertilization and the syngamy that this is a very shorter term, और मतलब यहाँ पर जो explanation है it's just about the fusion. अगर हम fertilization use करते हैं तो fertilization is a broader aspect as compared to syngamy. तो यहाँ पर gametic transfer कैसे fuse हो रहे हैं, how the gametes are moving, how they are fusing, what will happen, है ना? So that comes under fertilization. Clear? So fertilization का जो end product है, once the male and female gametes are fused, they will form zygote. So zygote is the structure which is necessary in all sexually reproducing organism. अगर कोई reproduction process ऐसा है जिसमें zygote नहीं बन रहा है, तो you cannot say that a sexual क्या होता है, एक चीज नेक्स्ट स्लाइड में बताई है. Sometimes what fertilization not there, ठीक है, मेल गैमेट भी प्रोड्यूस, फीमेल गैमेट भी प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, यहाँ से मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ. नाउ गैमेटिक ट्रांसफर हो गया है, मेल गैमेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट, but the next very critical step, fertilization is not happening, syngamy is not happening. Then what will happen to gametes? अगर ऐसा हो गया सारे ऑर्गेनिजम्स में तो स्पीशीज की कॉन्टिन्यूटी में मेंटेन कैसे करूंगी? नाउ दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. हो भी सकता है, इवोल्यूशन में कुछ भी हो सकता है, ऐसा हुआ भी होगा. इन दैट कंडीशन gametes have to adapt themselves, and now how they will adapt, basically उनको ऑर्गेनिज्म तो बनाना है, कॉन्टिन्यूटी तो मेंटेन करनी है, तो हमें ये देखना है कि कौन सा गैमेट डेवलप होगा, कौन सा नहीं होगा, कैसे वो अपने आप को सर्वाइव करेगा, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स व्हिच एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो इस चीज को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में डिफरेंस क्या क्या है. अगर आपने एग देखा होगा, अगर आप सॉरी एम्ब्रियोलॉजी तो अभी हमने नहीं स्टडी किया है, बट हम जब गैमेटिक स्टडी करते हैं एट दैट टाइम यू नो कि मोस्ट ऑफ द यॉक काइंड ऑफ थिंग रहता है, जो साइटोप्लाज्म होता है वो एग फीमेल गैमेट में ज्यादा होता है, एग में ज्यादा होता है, बिकॉज एग जो है उसका नंबर कम है, और जो मेल गैमेट है उसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है बिकॉज नंबर इज मोर. तो हर एक स्पर्म को, हर एक एंथ्रोजॉइड को आपको थोड़ा 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 साइटोप्लाज्म देना है, वो मूव कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली वो अपने साइटोप्लाज्म को यूज कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो अगर आप सर्वाइवल कैपेबिलिटी देखोगे तो फीमेल गैमेट की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेल गैमेट, बिकॉज किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए जो एसेंशियल कंपोनेंट है दैट इज साइटोप्लाज्म. अब मेल गैमेट्स में साइटोप्लाज्म ही कम है डेफिनेटली, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, फीमेल गैमेट सर्वाइव करेगा. क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस भी हो गए हैं, ट्रांसफर भी हो गया है, बट दे आर नॉट फ्यूजिंग, देन एग सेल has the capability to form an organism, an adult one, okay, because it has sufficient amount of cytoplasm. अगर आप unfertilized egg भी देखोगे ना, जो पोल्ट्री फॉर्म में जनरली प्रोड्यूस करते हैं, उसमें यॉक का अमाउंट सफिशिएंट होता है, सो दैट यॉक इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द सेल साइटोप्लाज्म. सो ये जो प्रोसेस है, द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म by an unfertilized egg is known as parthenogenesis. ये discover नहीं हुआ है. Parthenogenesis is not discovered by the doctors or researchers who are doing the researches in biology, zoology and botany. ये actually natural process है that ये gametes अपने आप को adapt किए हुए हैं, that if fertilization is not happening, specifically syngamy is not happening, then female gamete has a tendency. और इसका सबसे अच्छा नेचुरल एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पर बताया है हनी बीज का, है ना. हनी बीज में एक्चुअली 3 कैटेगरीज होती है. एक होता है फर्टिलाइज्ड फीमेल, एक होती है स्टेराइल फीमेल, बेसिकली जो वर्कर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ नेक्टर का काम करते हैं, एंड एक होते हैं ड्रोन्स. ड्रोन्स आर नोन एज मेल पार्टनर, ठीक है. तो वहां पर जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है और मेल्स जो रहते हैं वो हेप्लॉयड होते हैं.
क्यों ऐसा है? अब देखो हो क्या रहा है कि जो डिप्लॉयड हनी बी है डेफिनेटली वो मियोसिस के थ्रू गैमीट्स बनाएगी, और जो हेप्लॉइड मेल्स है वहां पर मियोसिस नहीं होता है, यहाँ पर होता है माइटोसिस, बिकॉज मेल्स हेप्लॉइड है तो वो माइटोसिस के थ्रू गैमीट्स बनाएंगे। नाउ यहाँ पर दोनों हेप्लॉइड गैमीट्स हो गए, अब इनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन के बाद बनेंगे डिप्लॉइड जाइगोट्स। नाउ ये डिप्लॉइड जाइगोट्स जो हैं ये कभी भी मेल में डेवलप नहीं होते हैं, ये डेवलप होंगे या तो फर्टाइल फीमेल पार्टनर में या फिर स्टेराइल फीमेल में, मतलब जो वर्कर्स हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑन द रॉयल जेली कि किसको हम रॉयल जेली दे रहे हैं। तो जिसको आप रॉयल जेली दोगे वो फर्टाइल फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको नहीं देंगे वो स्टेराइल फीमेल रहेगी। बट कभी जनरली क्या रहता है कि जो डिप्लॉयड फीमेल है उससे जो एग प्रोड्यूस हुए हैं बाय मियोसिस, वो अनफर्टिलाइज्ड एग ही डेवलप हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म में, और वहां से बनते हैं ड्रोन्स विच आर मेल पार्टनर। तो यहाँ पर देखो मियोसिस हुआ, अब मियोसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो हेप्लॉइड है, वो डिप्लॉइड नहीं है। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है पार्थेनोजेनेसिस का जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, उसी को हम ट्राई कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए ह्यूमन में। ओके, मतलब अनफर्टिलाइज्ड एग से किसी ह्यूमन बीइंग को डेवलप करना। फाइन, प्लांट्स में तो मेनली हम यूज कर ही रहे हैं टिश्यू कल्चर में, बट वी आर ट्राइंग इन ह्यूमंस एज वेल बेसिकली फॉर दिस। तो दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना। तो ये कुछ रोटिफर्स, हनी बीज, लिजर्ड्स और बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, नाउ फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट जो था, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दैट ऑर्गेनिज्म शोइंग external sorry, this is about the external fertilization, not this one, fertilization। ठीक है, तो it is actually fusion of male gamete plus female gamete। प्रोडक्ट क्या रहेगा? जाइगोट। जो अभी मैंने पार्थेनोजेनेसिस बताया है, तो पार्थेनोजेनेसिस इज नॉट अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, यू कैन से इट्स एन असेक्सुअल, गैमीट हो रहा है बट फ्यूजन नहीं है, तो वो असेक्सुअल कैटेगरी में आएगा। क्लियर? ये मैंने असेक्सुअल में भी बताया था पार्थेनोजेनेसिस आपको। So successful transfer and coming together of gamete is an essential and most critical event in sexual reproduction, and this is also known as fertilization. Okay, Singami, sentence thoda sa incomplete hai, you can matlab don't note down this, just note down till this one. And this process is known as syngamy, results in the formation of a diploid zygote। जाइगोट का नेचर, जैसे मैंने बोला था गैमीट्स हेप्लॉइड होते हैं, वैसे इट इज कंफर्म्ड दैट जो जाइगोट है वो डिप्लॉइड होगा। ओके, सो पार्थेनोजेनेसिस मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, सम फीमेल गैमेट्स अंडरगो द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, देन फर्टिलाइजेशन जो है एक्चुअली, जैसे हमने गैमेटिक ट्रांसफर किया था, जैसे हम फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, एंड वैसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में भी पढ़ेंगे, जो सारी प्रोसेसेस हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉलो हो रही हैं, वो एक्चुअली डिपेंड करती है टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और इवोल्यूशन। बेसिकली अगर बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, सो द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज आल्सो डिफरेंट। देखो बेसिक फंडामेंटल सेम है, गैमीट प्रोड्यूस होंगे, फ्यूज होंगे, ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा, but how these all events are happening, this depends on the type of organism, that how the organism is adapted, whether it is aquatic, whether it is terrestrial। okay, तो ये एक हिस्ट्री टाइप चल रहा है कि धीरे धीरे सारी चीजें इवॉल्व हुई है, तो इसीलिए मैंने फर्टिलाइजेशन को भी क्लासिफाई किया है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, जनरली आपको पता होगा दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन और सिंगेमी इज हैपनिंग आउटसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और मेनली फीमेल बॉडी जो रहता है। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज शोन बाय एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। सो एक्वेटिक लाइफ प्रिमिटिव थी, पहले इवॉल्व हुई थी, तो उस टाइम पे इतना इवोल्यूशन नहीं था, डेवलपमेंट नहीं था। देन नेचर को लगा कि अब मुझे कुछ ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है जिससे मैं एनर्जी को थोड़ा सा सेव करूं। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बहुत ज्यादा होते हैं,
just to increase the chances of syngamy. But internal fertilization में अगर आप देखोगे तो only male gametes are more, female gametes are very less. तो energy जो conserve किया है nature ने वो फीमेल गैमेट्स के नंबर में किया है, उसको मोटाइल नहीं बनाया, स्टेशनरी हो गया, ओनली 1 और 2 गैमेट्स आर सफिशिएंट. ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन को सोचते हुए हमेशा इवोल्यूशन होता है. दैट्स व्हाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ प्रिमिटिव मेथड. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज रिलायबल, चांसेस आर मोर, सर्वाइवल इज बेटर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? तो एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे मैंने ये चीज आपको गैमेट ट्रांसफर में भी बताई थी, that organisms are showing external fertilization is fine, but releasing of gamete at the same time is necessary. So organisms have shown some sexual behavior just to stimulate the release of gametes at the same time so that they can be come closer with the help of that medium and the fertilization can happen. Here the survival chance is very less as compared to the internal fertilization. Fine. So external fertilization generally shown by aquatic organisms, basically algae, fishes and amphibians, while internal fertilization is by more evolved and developed organisms like fungi, reptiles, birds and mammals, mostly terrestrial one. In organisms showing external fertilization show great synchrony between sexes. वही जो मैंने behavior वाला synchronicity is very important in both the partners who are showing external fertilization and release large number of gametes in medium in order to enhance chance of syngamy. Probability increase कर रहा है, ठीक है? But इसका major disadvantages क्या होते हैं? Because gametes are actually a source of nutrient. So they are vulnerable to predators. कोई भी predator आकर उनको consume कर लेगा, है ना? तो if that's the reason कि जो external fertilization show करते हैं उसमें number of zygotes are higher और जो egg बनते हैं वो भी ज़्यादा है. जैसे अगर मैं frog की बात करूँ तो उसमें thousands of eggs और thousands of zygotes are produced after syngamy. But उसमें से develop कितने होते हैं? Maybe 10, maybe 15. तो thousands में से only these are the eggs or zygotes able to मतलब survive and then they are able to convert into an adult. The only reason that जो भी predators होते हैं वो उनको consume कर लेंगे. अगर predator नहीं है तो environmental condition अगर आपके लिए optimum नहीं है तो वहां पर वो survive नहीं कर पाएंगे. क्लियर? तो यहाँ पर एक चीज आप और बोल सकते हो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सीजनल ब्रीडिंग भी आती है, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स ओनली, जैसे फ्रॉग हमेशा ब्रीडिंग प्रोसीजर कब शो करता है? रेनी सीजन में. व्हाई? बिकॉज दैट वेदर इज ऑप्टिमम फॉर देम. तो वहां पर वो सीजनल ब्रीडिंग शो कर रहे हैं. क्लियर? देन जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें अब गैमीट तो अलग अलग बन रहे हैं, फ्यूजन भी इनसाइड द बॉडी होगा, बट द प्रॉब्लम इज कि गैमीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है. फाइन. तो मेल गैमेट जो है जनरली मोटाइल होता है एंड उसको पहुंचना पड़ता है फीमेल गैमेट तक फॉर द सिनगेमी. नाउ जो जैसे प्लांट्स जो रहते हैं जनरली पॉलिनेशन इज द मेथड, but in the animals basically there is a process known as copulation or intimate basically. So these are the processes responsible for the transfer of male gamete up to the female gamete. Again the number of male gamete are more as compared to female gamete. ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको examples दिए हुए हैं external और internal fertilization के. Then same differentiation हम evolution के basis पे पढ़ेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओवीपैरस, वीवीपैरस, ऐसा क्यों हो रहा है ना? सो होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट थिंग इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. फाइन. व्हाट विल हैपन वंस zygote is formed? Now again it depends, first of all it depends on the ploidy of the organism, whether it is diploid, whether it is haploid. अगर वो haploid organism है तो zygote will undergo meiosis and वहां पर जो spores बनेंगे वो spores आपके इंडिविजुअल को वापस से फॉर्म करेंगे. जैसे जो हमने फंगाई में देखा था, zygote बन जाता है, फिर स्पोरेंजियम के अंदर जो spores बनते हैं वहां पर, that kind of thing. ठीक है? बट जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहां पर zygote के अंदर होता है माइटोसिस, वहां पर बनेगा एम्ब्रियो. तो हेप्लॉइड में एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां पर स्पोर फॉर्मेशन होता है. एंड जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर होता है
embryo formation. That detail we will study in the embryogenesis, but little more we can study here. Fine. So events in sexual reproduction after the formation of zygote are called as post-fertilization events. Formation of diploid zygote. In organisms belong to fungi and algae, zygote develops a thick wall. देखो यहाँ पर ये स्पोर ऐसे भी बनता है, जो zygote है एक्चुअली वो अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए अपने ऊपर एक थिक वॉल डेवलप कर लेता है, एंड एक रेस्टिंग पीरियड से पास होने के बाद वो जर्मिनेट होगा, so that it can resist to the desiccation and damage. It undergoes a period of rest before germination, and then once it will get the optimum condition, the zygote or the spore will germinate. ठीक है, तो zygospore वाला जो example हमने यहाँ पर दिया था. But further development of zygote depends on the type of life cycle, the organism and the environment it is exposed to. Because development के लिए चाहिए आपको nutrient, proper temperature, proper pH, your ploidy क्या है, haploid है या diploid है, ठीक है. तो organisms with haplontic life cycle, zygotic meiosis occur. And अच्छा यहाँ पर एक important statement मैंने लिखा है, that zygote is the vital link that ensure the continuity of species between the organisms of one generation to the next. मतलब ये मेरी previous generation है और ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन है. इन दोनों जनरेशन्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट लिंक है वो जाइगोट है. ओके, बिकॉज जाइगोट इज हैविंग ऑल द इंफॉर्मेशन which it has obtained from the parent and all the new recombinations which it will express in the new generation. अब न्यू जनरेशन में एडेप्टेशन और चेंजेस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट चीजें होगी, बट एक जो जनरेशन को लिंक करने वाला स्ट्रक्चर है, that is your zygote. Okay, then embryogenesis. जैसे मैंने haploid वाला तो बता दिया, zygotic meiosis होगा. Embryogenesis is a longer and very critical process. यहाँ पर जो cells divide हो रही हैं, differentiate हो रही है, अगर वहां पर कोई fail हुआ तो पूरा organism ही defective रहेगा. Clear? तो embryogenesis में क्या होता है, जो zygote बनता है it will divide by mitosis division. मतलब zygote जो है वो एक single cell structure है, ठीक है. Now इस cell से multiple cells बनना, multiple cells से different type of cell बनना. Suppose मैं shape से बताऊं तो कोई square है, कोई rectangle है, कोई triangle है, कोई linear है, कोई oval in shape है, ठीक है. So first of all increase in number of cell, and second changing these cells into different types of cell. Because आप सबका जो basic origin है वो zygote है, but how it is possible that आपकी body में liver cells अलग हैं, brain cells अलग हैं, bone cells अलग हैं, blood cells अलग हैं, all the cells are very different in their structure. तो ये जो process है, ये जो दो process है, एक तो cells, second of cell. So increase in number of cells is known as cell division. This is a cell division type, but type of cell is cell differentiation is like the to differentiate the cells of the embryo into different types so that to form an organism. अगर इसको और सिंपलर लेवल पे ले जाना चाहते हो तो कंसीडर यहाँ पर एक कोई कॉर्पोरेट है और उसका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयज की हायरिंग कर रहा है ना. उस हायरिंग के बाद जो उनको इंडिविजुअल काम असाइन हुआ है और जो उनका प्रॉपर वर्क है, दैट इज डिफरेंशिएशन. तो हायरिंग इज एक्चुअली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, बट डिविजन ऑफ लेबर, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन. सेल डिफरेंशिएशन कैसे होता है एक्चुअली, ये आप जेनेटिक्स में अच्छे से पढ़ोगे, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो एम्ब्रियो की सेल्स होती है जो एक्चुअली सारी बॉडी सेल्स बनाएगी, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें सारे जीन्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. बट जब सेल एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज होती है तो उसमें सिर्फ वो ही जीन एक्सप्रेस करेंगे जो उस सेल की वर्किंग के लिए एसेंशियल है. रिमेनिंग सारे जीन्स सप्रेसिंग फॉर्म में रहेंगे. इट मीन्स आपकी जो सारी बॉडी सेल्स हैं उसमें सारे जीन्स होते हैं, इवन दो the cell which is in your brain, that is neuron, is having the genes for your bone cell and all the cells, but काम कौन कर रहे हैं, functional कौन है, only which are necessary for the functioning of neuron. Clear?
बट देयर आर सम सेल्स इन योर बॉडी जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ जीन होते हैं और वो फंक्शनल भी है. फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बोन मैरो की सेल्स हैं, बोन मैरो में जो सेल्स होती है उसमें 3 टाइप के जीन कॉम्बिनेशन में होते हैं, आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के और प्लेटलेट्स के. ठीक है, तो जब इस सेल से आरबीसी बनती है तो सिर्फ आरबीसी के जीन फंक्शन होंगे. इस सेल से जब डब्ल्यूबीसी बनेगी तो सिर्फ डब्ल्यूबीसी के जीन एक्सप्रेस करेंगे. इस सेल से जब प्लेटलेट बनेगा तो सिर्फ प्लेटलेट के जीन. बट दिस सेल कैन एक्सप्रेस फॉर ऑल दीज 3 cells. Okay, hope you are getting my point. Don't get confused because this you will study in the genetics properly. So cell division and cell differentiation. After cell is differentiated, specialized tissue will form. Tissues will combine to form organ. Organ से organ system बनेंगे. And finally, after organ system, there is a formation of organism, जिसको हम बोलते हैं fetus in human being. Okay? And once this entire embryogenesis process is completed, birth process will occur. Now, how birth process will occur and this development, how the development is happening, जो evolution के basis पे मैं classification बता रही थी, that also we will see that हमने उसको कैसे classify किया है. ठीक है, अब जो embryogenesis है वो बॉडी के अंदर है या बाहर है. देखो एक चीज तो थी जो हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी. ठीक है, नाउ वंस फर्टिलाइजेशन इज डन, डजंट मतलब बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट. तो क्या होता है, इन सम ऑर्गेनिजम्स द zygote is released from the female body, basically in the form of egg. Those organisms are known as oviparous. मतलब वो egg lay करेंगे, अंदर embryonic development होगा and the organism or the developed fetus will hatch out. But in viviparous, the entire development is happening inside the female body. So you can also say that vivipary is giving a more chance of survival as compared to oviparous. बिकॉज जैसे ही पोल्ट्री में तो होता ही, जैसे ही मतलब किसी भी मुर्गी ने अंडा दिया आप उसको ले लोगे कंज्यूम करने के लिए. तो वो आर्टिफिशियल मतलब लेइंग एगिंग इज अ डिफरेंट थिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट द एक्सप्लॉयटेशन वन, आई एम आस्किंग फॉर द नेचुरल प्रोसेस. फाइन. सो ओवीपेरस में क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फीमेल पार्टनर विल ले एग्स and the further development or embryogenesis will happening in the egg वाला thing. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोई भी बर्ड जब एग ले करता है तो वो पहले अपना नेस्ट कंस्ट्रक्ट करेगा, उसके बाद उसको हीट प्रोवाइड करता है. जो बर्ड होता है उसके अंडों के ऊपर जनरली बैठा रहता है. द ओनली रीजन कि उसको वहां पर इतनी वार्मथ चाहिए होती है कि वो फीटस डेवलप हो पाए. एंड देन जैसे कि आपने देखा होगा जो ये बर्ड्स हैं वो तो नेस्ट क्रिएट करते हैं. जो रेप्टाइल्स हैं वो जो भी अपने अंडे होते हैं उनको सॉइल की लेयर से कवर कर लेते हैं सो दैट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द प्रेडेटर. अगर प्रेडेटर ने उसको देख लिया तो वो कंज्यूम कर लेगा. बट अब इफ द डेवलपमेंट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी देन इट विल कम्स अंडर विविपैरी पार्ट. ठीक है, तो ओविपेरस में जनरली जो आपकी रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश और ये सारी रहती है. सम फिशेज आर आल्सो शोइंग सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, तो वहां पर भी हम ओविपेरस कंसीडर करेंगे, एम्फीबियंस में एज वेल. तो जनरली ओविपेरी वहां पर रहता है और विविपेरस मैमल्स में रहता है. बट मोस्टली ऑल द रेप्टाइल्स एंड ऑल द बर्ड्स शोइंग द सेक्सुअल इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड दे विल ले एग्स आफ्टर द सिंगैमी. विविपेरी में क्या होता है, विविपेरी में भी अगर आपने मैमल्स की क्लासिफिकेशन में स्टडी करी होगी तो यहाँ पर भी अलग अलग तरह से होता है. सम मैमल्स विच आर लेइंग एग लाइक प्लेटिपस. देन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो हाफ मैच्योर्ड चाइल्ड को बर्थ देते हैं, फिर उनके अंदर जो पाउच होता है वहां पर उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, जैसे कंगारू. बट जो एक कंप्लीट कैटेगरी होती है वहां पर entire development of fetus generally happens inside the womb, and once the fetus is completely developed then the birth process will occur. Okay, तो ओविपेरस में एग लेइंग है, डेफिनेटली इनका एवोल्यूशन पहले है एज कंपेयर टू विविपेरी बिकॉज दिस इज द एडवांस मेथड एज कंपेयर टू ओविपेरस. देन यहाँ पर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स दी है लाइक डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट.
ओविपेरस में फर्टिलाइज्ड एग्स आर कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरस शेल. इनमें जो ऊपर शेल होता है, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट्स व्हाई कैल्केरस शेल्स व्हिच laid in a safe place in the environment, and young ones hatch out after a period of incubation. Incubation means providing optimum condition. It's a period, actually it needs warmth and other enzyme, the other conditions for pH basically, so the fetus development will take place. Viviparous में क्या होता है, proper embryonic care and protection causes greater survival chances of young ones in viviparous. Basically because यहाँ पर वो womb के अंदर है तो कोई predator उसको कोई harm नहीं कर पाएगा. अगर अंदर कोई metabolic disorder है तो that's fine, but external hazard उसको कुछ भी नहीं है. So because of the proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organisms. Okay. One second. Okay, fine. Now, what will happen in plants? So यहाँ पर क्या होता है, जैसे अभी तक तो हमने डिस्कस किया था वो एनिमल का था, बट प्लांट में एज आई टोल्ड यू दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट विल फॉर्म. एंड हो क्या रहा है, जैसे ये आपका स्टिग्मा है, ये आपका स्टाइल है, एंड ये आपका ओवरी है. तो अभी जो मेल गैमेट था वो स्टाइल से पास होता हुआ एम्ब्रियो सेक में आ गया, यहाँ पर फीमेल गैमेट से फ्यूज हो गया. ठीक है. नाउ यहाँ पर एम्ब्रियो सेक जो रहता है उसके ऊपर इंटीग्यूमेंट्स होते हैं विच आर नोन एज कवर ऑफ द एम्ब्रियो सेक. तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में. अब डेफिनेटली एम्ब्रियो बन रहा है तो सेल डिवीजन किस टाइप का होगा, माइटोसिस. नाउ दिस एम्ब्रियो इज नॉट नेकेड, और इसका जो डेवलपमेंट है इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल्स. इस एम्ब्रियो के ऊपर डेवलप होता है सबसे पहले तो इसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो इसके आसपास रहेंगे, तो वहां से कॉटिलिडन्स बनते हैं. एंड ये जो एम्ब्रियो सेक की वॉल है ये बनाती है सीड वॉल. तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है और उसमें जो न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है वो रहेगा बाय द कॉटिलिडन्स, एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कवर्ड बाय द सीड. तो वॉट एवर सीड्स वी आर कंज्यूमिंग, कोई भी सीड जो ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, जो हम लोग खाते हैं, उसके अंदर एम्ब्रियो होता है. एंड बिकॉज एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय द न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस, दैट्स द रीजन दैट सीड्स आर द वेरी गुड सोर्स फॉर ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स. दैट्स द रीजन. ओके. सो अब इसके ऊपर क्या रहता है, जैसे कि आप अगर बात करोगे जिम्नोस्पर्म्स में तो नेकेड सीड होते हैं, तो वहां पर जो एम्ब्रियो है इट्स लाइक इट इज नेकेड, इट इज नॉट कवर्ड बाय द बॉल. बट एंजियोस्पर्म्स में वी आर गिविंग मोर प्रोटेक्शन, तो वहां पर एक सीड वॉल रहेगी विच इज नोन एज सीड कोट. देन जो ओवरी है जिसके अंदर ये एम्ब्रियो सेक था ये कन्वर्ट होती है फ्रूट में. अब फ्रूट में कन्वर्ट होने का भी एक रीजन ये हो सकता है कि जनरली जब एनिमल्स जब फ्रूट को कंज्यूम करते हैं तो दिस पार्ट इज वेरी टेस्टी इन नेचर, तो हम लोग जनरली इसको कंज्यूम कर लेते हैं. जो उसका सीड पार्ट होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट फूड नॉट ग्रेन्स एंड पल्सेस, बिकॉज उसमें हम सीड पार्ट कंज्यूम करते हैं. तो उसमें उसको कंज्यूम करने के बाद हम सीड एज इट इज थ्रो कर लेंगे. तो व्हेन वी आर थ्रोइंग द सीड मींस व्हेन वी आर जर्मिनेटिंग अ सीड. ओके. तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक है उसके अंदर एम्ब्रियो रहता है, उसके बाद कॉटिलिडन्स रहेंगे उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए. देन एम्ब्रियो सेक का वॉल जो है वो सीड वॉल बनाएगा. उसके बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होता है, एंड ओवरी का जो वॉल है वो फ्रूट वॉल बनाएगा विच इज जनरली नोन एज पेरिकार्प. ओके. इसके जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ ओनली पिस्टल इज द पार्ट, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द पार्ट which still remain attached to the main plant body. रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स थे, मेल पार्ट, सेपल, पेटल्स, वो सारे वहां से हट जाते हैं, एंड ओनली दैट फीमेल पार्ट विल डेवलप इनटू सीड, देन फ्रूट. And once the fruit is consumed by any of the animal, the seed will, we are throwing the seed anywhere on the ground, and then the seed will germinate after getting the optimum conditions. Okay. तो zygote बनता है. After fertilization, the sepals, petals, and the stamens of the flower wither or fall off. Zygote will develop into embryo. Ovules will develop into seed.
and ovary will develop into fruit, and the wall of fruit is known as pericarp, which was the wall of ovary. Okay, so guys, with this we are done with this reproduction in organism chapter. In next class I will start the reproduction in plant. If you have any doubt, you can ask to your respective coordinator who is coordinating with you, so that I'll get clear to these doubts to you. Fine. And you can also like type your doubts on the chat in the next class, or you can ask me. Okay. So bye bye guys. Take care. I'm stopping it here.